Krishna Deva Bhagavan Sambande Yadyapi Samati Suvidirapi Pasyati Natavanaka Gramarichim Idamichamini samyatavachyuta Tadapi kripa bhutavichim Krishna Deva Bhagavan Sambande Krishna Deva Bhagavan Sambande Bhaktir-udam Chatiyadyapi Madhava Natvaye Mamatila Matri Parameshvara Tadopita Adhika Tadata Gatana Vidatri Krishna Deva Bhagavan Sambande Krishna Deva Bhagavan Sambande I am Abilola Tadya Yadya Sanatana Kalita Bhuta Rasavaram Satu Nityam Yamrita Nindivinam Madhurimam Saram Krishna Deva Bhagavan Sambande Krishna Deva Bhagavan Sambande Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Gopula Taruni Mandala Mahite Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Damodara Rati Vadana Vese Hari Nishtuta Vrinda Vipinese
Radhe Jaya Jaya Madhava Jai Jai. Rishabhanudari Navashashi Leke Lalita Saki Guna Ramita Vishake. Radhe Jaya Jaya Madhava Jai Jai. Karunam Guru Mai Karuna Bharite Sanaka Sanatana Vanita Charite. Radhe Jaya Jaya Madhava Jai Jai. Radhe Jaya Jaya Madhava Jai Jai. Jaya Radha Jaya Krishna Jaya Radha Jaya Shri Krishna. Namami Sharanam Sachidananda Rupa Lasakundala Gokule Brajamana Yashoda Piyo Luka Lada Mamana Paramrishtama Rudantamurnetra Yugmamridanta Karamojayumina Satam Payitram Muhushvasagam Padirghankakantha Stitagrevadam Salila Virananda Kunde Swakoshami Maganda Madhyapayatam Tvajyeshita Vishu Bhaktayjitatvam Puna Premadastam Shatavritima
परं देवमोक्षं न मोक्षापदीं वा नाथान्यविनेयं वर्षान्वपीहा इदं देवा पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिलाषां किमन् इदं ते मुखाम्बुजमाप्यन्तनीलै वृत्तं कुतलैर्सेन्दरतैश्च गोप्या मोचुम्बितां रक्ताधरामि मनस्य विलासां लक्ष्यलाभि नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रमोदुक जालब्धिमग्नं कृपादृष्टिवेद्यति दीनं पतानुगृहणेश मां यग्महि गृहणेशति कुबेरात्मजो वदामुद्रैव यद्वत् त्वया मोदितो भक्ति भागौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकमे प्रयच्छ नामुक्षिग्रहो मे अस्ति दामोदरी नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयन्तरायात्मा विग्रस्य नाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय शिवाय तु नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्द राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद ओ श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare
राधिका रमण राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा माधव राधे जयो जयो सचिनंदन जयो गौर हरि सचिनंदन जयो गौर हरि जयो गिरिराज जयो गोवर्धना गिरिराज जयो गोवर्धना जयो राधा कुंड जयो श्याम कुंड राधा कुंड जयो श्याम कुंड हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निकाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से मानसी गंगा को स्नान मानसी भरो फिर चकलेश्वर को ध्यान दान घाटी पे दधि को दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज
तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से गाँव अन्योर कुंड गोविंद गाँव अन्योर सरोवर धरी रहे स्वच्छंद पुछरे को लौटा है मृदंग आगे फिर जपी पुरा सुखकारी है गोवर्धन महाराज आगे फिर जपी पुरा सुखकारी है गोवर्धन महाराज ओ गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज गोवर्धन गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी शिखर के ऊपर नाचे मोर शिखर के ऊपर नाचे यहाँ संत यहाँ पड़े रहे जब और संत यहाँ पड़े रहे जब हरे को भजन करे निशि भोर बजे घंटा झालर घन घोर करे वो सब ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज करे वो सब ब्रज की रखवारी हाँ गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज ओ जय गिरिराज जय गिरिराज ओ जय गिरिराज जय गिरिराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से कुंड राधा और कृष्ण अपार कुंड राधा और कृष्ण अपार जहाँ होए अविचल नित्य विहार यहाँ होए करे बंदर सबका सत्कार कुसुम के निकट खिली फुलवारी है गोवर्धन महाराज कुसुम के निकट खिली ओ छटा के तीन लोक से जारी है गोवर्धन महाराज धन्य जो वास करे गिरिराज
लाज उनकी राखे महाराज। सभी होए पूर्ण मन के काज, सभी बिन बोलो जय जयकार। किशोरी चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। किशोरी चरणन की गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज। जय गिरिराज जय गोवर्धन, जय गिरिराज, जय गिरिराज जय गोवर्धन। गिरिराज आपकी जय जय हो, गिरिराज आपकी जय जय हो। जय जय हो आपकी जय जय हो, जय जय हो आपकी जय जय हो। जय गिरिराज जय गोवर्धन, राधा कुंड जय श्याम कुंड। गिरिराज जय गोवर्धन, जय गिरिराज जय गोवर्धन, गिरिराज जय गोवर्धन। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीताय गौर श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ। विचरूं मैं लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। विचरूं मैं लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। अन्योर जतिपुरा जन में, राधा कुंड गोवर्धन में। अन्योर जतिपुरा कुंडल के कर स्नान
करूं जलपान पड़ो रहूं रज में, कुंडन के कर स्नान करूं जल दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहि ब्रज में, दीजो प्रभु बारंबार जो किछु मिले प्रसाद पाए के, गोविंद के गुण गाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। पक्षिन में मोर बनइयो, कदमन में वास करइयो, पक्षिन में मोर बनइयो, कदमन में गिरवर पे नाच नचइयो, करुणा करके खूब कहियो, गिरवर पे नाच नचइयो, झालर घंटन की घोर करूं सुध शोर शब्द शंखन के, झालर घंटन की घोर करूं सुध शोर शब्द शंखन के, धारे मन मोहन मुकुट मोर पंखन के, धारे मन मोहन मुकुट मोर पंख, नेत्र सुफल जब होय करूं दर्शन निज ही हर्षाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, श्री गिरिराज वास मैं पाऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव भक्त वृंद सभी के श्री चरण कमलों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। आज श्री गिरिराज महाराज जी का अन्नकूट महोत्सव है और हमारे समस्त गुरु वर्ग बड़े ही आदर के साथ में अपने बड़े हृदय के आनंद के साथ में इस अन्नकूट महोत्सव का पालन करते हैं। और जो भी भक्त लोग जहाँ कहीं पर भी होते हैं इस अन्नकूट के महोत्सव का पालन करके अपने आप को धन्य मानते कृतार्थ होते। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही ये जो महोत्सव है इसका प्रारंभ करवाया था और उन्होंने ही स्वयं आचरण करके अर्थात स्वयं ही उन्होंने कैसे गिरिराज जी के पास में जाना है, किस प्रकार से उनको प्रणाम करना है, कैसे सभी लोग उनका अभिषेक करवाओ, फिर किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चन करो, कैसे उनको वस्त्र धारण कराओ, मुकुट दो, किस प्रकार से भोग निवेदन करो, कैसे फिर उनकी परिक्रमा करो, सारी की सारी क्रिया जो है ये, और फिर कैसे गिरिराज जी का प्रसाद ग्रहण करो, वितरण करो, ये सब कुछ श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्रज में करके दिखलाया था। ये श्री कृष्ण की एक बहुत विशेष लीला और कृपा, इसलिए सभी भक्त लोग आज तक भी सभी क्या करते हैं, गिरिराज गोवर्धन का ये अन्नकूट महोत्सव करते हैं। गिरिराज केवल इस जगत में ही हो ऐसी बात नहीं। जो गर्ग संहिता है उस ग्रंथ में अच्छी तरह से इस वस्तु का वर्णन किया कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित होना चाहते हैं तब श्रीमती राधा रानी ने स्वयं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनसे उस समय पूछा जे हे राधिके, मैं पृथ्वी लोक पर
इस ब्रह्मांड के उस पृथ्वी लोक पर मैं अपनी लीला को प्रकटित करने के उद्देश्य से जाऊंगा, तो आप मेरे साथ में चलोगी? तब श्रीमती राधिका ने कहा, हे कृष्ण, जिस स्थान पर गोवर्धन नहीं है, जिस स्थान पर यमुना जी नहीं है, जहाँ पर ये गोलोक के वन उपवन नहीं है, उस स्थान पर मैं आपके साथ जाकर के आपकी क्या सेवा करूंगी, कैसे करूंगी? तो श्री कृष्ण ने कहा, जय राधिके, मैं अपने साथ में यहाँ से गिरिराज जी को, जमुना जी को और वन उपवन को अपने साथ में लेकर के ही चलूंगा, मैं अपने साथ लेकर के चलूंगा। तो इसलिए गिरिराज जी को श्री कृष्ण कहाँ से लाए हैं? स्वयं अपने साथ में गोलोक वृंदावन से ही लाए हैं। इसीलिए गिरिराज जी की जो विशेष उनका जो महिमा, उसको श्री कृष्ण ने प्रकटित किया। हमारे गुरु वर्ग शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण श्रीमती राधिका, इन दोनों का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। मिलन होने पर भी श्रीमती राधिका ने कहा कि जो ब्रज है, वृंदावन है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप हो, मैं हूं, कि सारी सखियां भी साथ में हैं, किंतु यदि ब्रज में हम नहीं हैं, तब फिर उस प्रकार की जो सेवा की परिपाटी, सेवा की सामग्री, वो सारी उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए ब्रज का अपना एक बहुत बड़ा जो है इस श्री कृष्ण की लीलाओं में सब प्रकार से इम्पोर्टेंस है, योगदान है, योगदान है उसका। इसीलिए श्रीमती राधिका ने कहा कि आनिर हृदय मन मोर मन वृंदावन, वने मने एक करी जानी। केवल आपके साथ में रहना ये मेरा जो है प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। मेरे साथ में वृंदावन, तब उसके बाद में फिर आपकी सेवा जिस प्रकार से होती है, उससे ही वास्तविक संतुष्टि होती है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन, इसकी हमारे गुरु वर्गों ने बहुत महिमा भी गान किया। महिमा गान करना मतलब सत्य सत्य बात को बोलना, बड़ा चढ़ा करके बोलना, कम कर देना, ऐसा वाला नहीं। सच सच में जो गिरिराज गोवर्धन की महिमा, उसी को उन्होंने वर्णन किया। गिरिराज जी की छोटी शिला हो, बड़ी शिला हो, सबको ही क्या कहा गया? जो एक समान पूजनीय। ये क्या है? साक्षात गिरिराज है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करना पड़ता नहीं है। और विग्रह में तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, गिरिराज जी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता। और जो गिरिराज जी, इनकी अनेक प्रकार से सेवा होती है, अनेक प्रकार से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको किसी ने गिरिराज शिला ला करके दी जगन्नाथपुरी में, और उन्होंने क्या करना, उस गिरिराज जी को लेकर के अपने पास में उसको हृदय से लगाते हैं, फिर उसको अपने नेत्रों के ऊपर रखते हैं, फिर अपने वक्ष स्थल पर उसको धारण कराते हैं। आसन कौन सा दिया? अपने नेत्र। महाप्रभु के नेत्र ही गिरिराज जी का आसन है, जो उनको शिला मिली। अलग से आसन नहीं देते उसको, अब अपने नेत्र के ऊपर रख लिया, और कभी अपने वक्ष स्थल पर रख लिया, कभी अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। ये उनको गिरिराज जी को ऐसे करके आसन दिया।
गिरिराज जी को भोजन क्या कराते हैं? भोजन कराते हैं गिरिराज जी को हरे कृष्ण बोल कर। यही उनको सुनाते हैं और यही गिरिराज जी को भोजन कराते हैं। और गिरिराज जी को स्नान कैसे कराते हैं? अपने नेत्र के जल से। इस प्रकार से गिरिराज जी को महाप्रभु जो हैं बड़े प्रेम के साथ में अपने पास में रखते हैं। वही ऐसे वाला उसको इतना प्रेम के साथ में उसको स्पर्श करते हैं और उनका नाम लेने से, उनके निकट बैठने से एकदम से ब्रज के प्रति उनका जो भावना उदित होता है, विरह का स्थिति आता है, तो उसी में क्या किया, जिस अपने अंगूठे से उसको सहला रहे हैं वो अंगूठे का चिन्ह ही पड़ गया गिरिराज शिला के भीतर में। वही शिला बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दी थी। और अभी कहाँ पर है वो? अभी वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर जो है वहां पर वही गिरिराज शिला वहां पर पूजित होती है, सेवित होती है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, राधा रानी ने गिरिराज गोवर्धन को नामकरण किया हरिदास वर्य। कौन सा श्लोक है ये? हंताय मद्रि अबला हरिदास वर्यो। इसमें बताया कि ये जो पर्वत है ये क्या है? हरिदास वर्य, हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ। ये ब्रज के सब व्यक्तियों की सेवा करते हैं हरि के साथ साथ, इसलिए हरिदास वर्यो। और एक बताया कि ये जो हैं गिरिराज, ये ब्रज के तिलक स्वरूप हैं, ब्रज का तिलक स्वरूप गिरिराज गोवर्धन। इसलिए जो कृष्ण के चरण चिन्हों पर चलते हुए, ब्रजवासियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए भक्त लोग क्या करते हैं? गिरिराज जी की महिमा गाते गाते परिक्रमा भी करते हैं गिरिराज जी की। गिरिराज जी को भगवान ने क्या किया था? 7 दिन 7 रात पहले तो उनकी आराधना की, वंदना की, पूजा की, स्तुतियां की, भोग निवेदन किए। सारा कुछ करने के बाद में जब और गिरिराज जी से आशीर्वाद मिले, दर्शन प्राप्त हुए साक्षात रूप में, उसके बाद में फिर इंद्र जो है वो क्रोधित हुआ। फिर कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण भी किया। कैसे? एकदम से इतना, जैसे कि एक बालक अपने हाथ में गेंद को पकड़ लेता है, बहुत हल्का। और गिरिराज जी को बड़े आनंद से उन्होंने 7 दिन 7 रात तक क्या किया? अपना उठा करके रख दिया। इस प्रकार के गिरिराज जी की महिमा को श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। हम लोग संध्या के समय में और विशेष कथाएं सुनेंगे गिरिराज जी की। और अन्नकूट का पालन अभी हमारे सारे भक्त लोग आज वृंदावन में कर रहे हैं पालन। इस बार गिरिराज जी में जा नहीं पा रहे, तो इसीलिए गोपीनाथ भवन में सारे भक्त लोग पालन कर रहे हैं। हमारे श्रीपाद सिद्धांति महाराज जी भी वहीं पर गए हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर संध्या हर वर्ष भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि प्रातः काल भक्त लोग सारे गोवर्धन जाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर संध्या के समय करते हैं। तो इसी प्रकार आज भी संध्या के समय में गिरिराज जी के कीर्तन, गिरिराज जी की कथा, गिरिराज जी का अभिषेक, उसके बाद में फिर प्रसाद इत्यादि हम लोग सारा संध्या के समय में ग्रहण करेंगे। अभी आज जो हमारे गौड़िया आचार्य, 2 विशेष गौड़िया आचार्य, आज उनका शुभ आविर्भाव दिवस है। एक गौड़िया आचार्य हैं
श्री रसिकानंद प्रभु। वृंदावन में जो लोग जाते हैं और जो सप्त देवालय में से श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, उनके साथ जिनका कुछ परिचय है, वो लोग जानते हैं कि जो श्याम सुंदर मंदिर है वहाँ, वो किसका मंदिर है? वो वहाँ पर जो विग्रह हैं, वो मंदिर जो है, कौन वहाँ पर रहता था? वहाँ पर जो विग्रह सेवित तो होते हैं वो कौन से हैं? किस ना? श्री मधु पंडित जी ने राधा गोपीनाथ, जो राधा श्याम सुंदर मंदिर, इसको किसने स्थापित किया था? नहीं पता, नहीं। श्री श्यामानंद प्रभु जी ने। श्री जीव गोस्वामी जी रहते थे राधा दामोदर मंदिर में। उन्होंने अपने निकट में ही जो है स्थान दिया था श्यामानंद प्रभु जी को। जहां पर श्री श्यामानंद प्रभु जी रहते थे, उसी स्थान का ही अभी क्या नाम है? राधा श्याम सुंदर मंदिर। उनको विग्रह, छोटे से विग्रह, उनको वहां पर उस मंदिर में 2 विग्रह हैं, एक बड़े विग्रह, एक छोटे विग्रह। जो बड़े वाले विग्रह हैं वो तो बाद में शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने स्थापित किए थे, उनके सेवित हैं। किंतु जो छोटे वाले हैं उसमें से कृष्ण का जो विग्रह, वो राधा रानी ने अपने हाथ से श्री श्यामानंद प्रभु जी को दिया था, प्रसन्न होकर के। जो उन्होंने नूपुर उनको मिली थी, वन में नूपुर पहनाई थी, फिर राधा रानी के चरणों में राधा रानी ने उनको जो विग्रह दिया था उसका नाम लाला लाली, वहां पर बोलते हैं राधा कृष्ण के छोटे विग्रह को मंदिर में। तो वो विग्रह वहां पर है, वो स्थान राधा श्याम सुंदर जी का जो स्थान, वहीं पर श्री श्यामानंद प्रभु जी रह करके भजन करते थे। उनकी भजन कुटीर थी, वहीं पर ही फिर मंदिर भी बनाया। तो जो ये श्री श्यामानंद प्रभु जी हैं, इनके ही शिष्य हैं ये श्री रसिकानंद प्रभु जी। आज जिनका शुभ आविर्भाव दिवस है, श्री श्यामानंद प्रभु जी के बहुत प्रधान शिष्य हैं। इनका नाम रसिक मुरारी भी है। कुछ भक्त लोग बोलते हैं रसिक मुरारी, कुछ लोग बोलते हैं रसिकानंद प्रभु। जैसा भी हो, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि। ये बहुत बड़े राजकुल में आविर्भूत हुए थे। और श्री श्यामानंद प्रभु जी जब प्रचार करने के उद्देश्य से गए थे उड़ीसा में, वहीं पर ही इन्होंने श्री श्यामानंद प्रभु का चरण आश्रय किया था। और बाद में बहुत सारे स्थानों और बड़ी अच्छी तरह से राज पदवी इत्यादि का, राजकुमार होने का, अच्छा स्वरूप होने का, धन संपत्ति का, उन्होंने उसी प्रकार से जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कथा सुनते हैं सारी, उस प्रकार से उनके जैसे ही लगभग सारी वस्तुओं से बिल्कुल दूरी बना करके रखते थे। और श्री श्यामानंद प्रभु जी की विशेष कृपा को, विशेष शक्ति को इन्होंने प्राप्त किया था। उनके बहुत एकांतिक भक्त थे और बहुत सारे स्थानों पर इन्होंने प्रचार कार्य भी किया था, बहुत लोगों के ऊपर कृपा की। उड़ीसा में स्थान स्थान पर अभी तक भी मान लो लगभग 400 वर्ष 500 वर्ष बीत गए, अभी तक भी स्थान स्थान पर श्री रसिकानंद प्रभु का बहुत अधिक आदर के साथ में सारे लोग नाम लेते हैं, गर्व अनुभव करते हैं कि ये जो है श्री रसिकानंद प्रभु हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी अलग अलग कथाएं भी घर घर में वहां पर होती हैं, लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। पुराने लोग नए बच्चों को वही कथाएं सुनाते हैं श्री रसिकानंद प्रभु की। इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छे और प्रसिद्ध, बहुत सारे लोगों का उपकार करने वाले
ये एक वैष्णव आचार्य श्री रसिकानंद प्रभु जी, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी, जो वहाँ उस समय छोटे छोटे स्थानों के राजा होते थे, बहुत सारे राजा लोगों को भी इन्होंने मंत्र दीक्षा इत्यादि प्रदान की थी, शिष्य बनाया था उनको उपदेश दिए थे। किस प्रकार से संसार के कार्य निर्वाह करते हुए भी कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, मुख्य वस्तु उसी को रखना चाहिए, उन्हीं को केंद्र में रख करके सारे के सारे कार्य करने चाहिए, ये उन्होंने उपदेश किए थे। कुछ कुछ लोग बोलते थे कि इन्होंने केवल बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर ही क्या किया, कृपा की और उनके साथ ही अपना संबंध रखा, और जो निर्धन लोग थे, जो कुछ कम पढ़े लिखे थे, उनके निकट में ये अधिक नहीं पहुंचते थे, उनके निकट नहीं पहुंचते थे। किंतु ये जो वैष्णव आचार्य, ये लोग उस प्रकार की सारी बातें अधिक उस तरह से, इनके अपने हृदय का इस प्रकार का भावना होता नहीं। ये सभी में क्या देखते हैं, जीवात्मा, और सभी को ही भगवान का भजन करने का अधिकार है। जहां जिससे भगवान कृपा करके मिला देते, उन्हीं के ऊपर ही अपनी कृपा को बरसाने लग पड़ते। तो इस प्रकार से ये श्री रसिकानंद प्रभु, इन्होंने श्री श्यामानंद प्रभु जी का जो वास्तविक हृदय की कथाएं, संपत्ति, उसका इन्होंने अच्छी तरह से प्रचार और संरक्षण भी किया। इसीलिए श्री श्यामानंद राधा श्याम सुंदर मंदिर में, वृंदावन में भी अभी तक भी इनके जो सारे आगे भक्त लोग हैं, वो बड़े ही एक बहुत श्रेष्ठ आचार्य के रूप में इनकी महिमा का नित्य प्रति गान करते हैं, इनके चरणों की वंदना करते हैं। ये बड़े वैष्णव आचार्य, इनमें बहुत प्रकार का इन्होंने अपना जो बाहर में ऐश्वर्य, उसको भी प्रकटित किया था। एक व्यक्ति ने ईर्ष्यालु होकर के, ऐसे देखो बड़े बड़े आचार्य हैं, इनके प्रति भी लोगों को ईर्ष्या होती, द्वेष होता। कल भी सुना था श्री रामानुजाचार्य जी को उनके शिष्य लोग ही विष देने के लिए आते हैं। श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का भी सुना। अलग अलग हम लोग बात श्रवण करते हैं। इनको भी क्या किया, इनके निकट में एक हाथी को, पागल हाथी को इनको मारने के लिए भेज दिया। और इन्होंने क्या करना, इन्होंने वही हाथी, पागल हाथी इनके सामने जैसे आया, वो आने के साथ साथ अपनी आप ही अपने मस्तक को झुका दिया, सूंड को ऊपर करके इनका उल्टा स्वागत करता है। वो था जंगली हाथी, अत्याचार करने के लिए छोड़ा था, किंतु इनके प्रभाव से वो भी एकदम से कैसे हो गया, शांत होकर के बैठ गया। और फिर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वहीं पर ही श्यामानंद प्रभु ने एक इनको मंदिर दिया था गोपी वल्लभपुर में। वहां पर ठाकुर जी हैं श्री राधा गोविंद देव, वो मंदिर इनको दिया था। और इन्होंने वही ठाकुर जी की सेवा में वो उनको लगा दिया हाथी को, कि प्रत्येक दिन क्या करेगा, ठाकुर जी के इनके ऊपर बैठ करके सवारी करेंगे, नगर में भ्रमण करके आएंगे। और जो वैष्णव जन है उनके लिए ये हाथी क्या करेगा, ये पानी कुएं से, सोन से उसकी रस्सी बाल्टी भर देते, लगा देते, और उसी से वो पानी को खींच करके वैष्णवों के स्नान के लिए दूसरे दूसरे जल को भर करके दे देता। इस प्रकार से हाथी को सेवा में लगा दिया। हाथी मिला है। और इन्होंने जो रेमुणा में खीर चोरा गोपीनाथ जी जो हैं, वहीं पर ही विग्रह जो हैं, उन्हीं के बीच में, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत से कैसे अदृश्य हुए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत से कैसे अदृश्य हुए थे। टोटा गोपीनाथ जी का जो विग्रह है, गोपीनाथ जी के
भीतर में गर्भगृह में गए महाप्रभु और फिर बाहर आए ही नहीं। गदाधर पंडित जी ने कहा अभी तो भीतर गए थे, अभी फिर भीतर में भी नहीं है, बाहर आए भी नहीं, मैं तो द्वार पे ही बैठा हूं। तो गोपीनाथ जी को ही उन्होंने क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया, उसी के बीच में ही प्रवेश कर गए। उसी प्रकार से ये जो श्री रसिकानंद प्रभु, इन्होंने खीर चोरा गोपीनाथ जी में गर्भगृह में प्रवेश किया और फिर वो जो खीर चोरा गोपीनाथ उन्हीं में ही प्रविष्ट हो गए। इसीलिए उनका शरीर भी किसी को बाहर में दिखाई ही नहीं दिया कि कहाँ है, उन्हीं में प्रवेश कर गए। उन्हीं के स्मृति के लिए ही वहीं पर ही निकट मंदिर के एकदम सामने ही बिल्कुल पास में प्रांगण में उनका पुष्प समाधि मंदिर, उनके साथ जो जो भक्त लोग आए थे उनका भी वो मंदिर वहीं पर स्थापित है। श्री रसिकानंद प्रभु की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, उनके समस्त आश्रित जनों की जय, उनके चरणों का स्मरण करने वाले समस्त भक्तों की जय। दूसरा आज तिथि है प्रभुपाद जी के, श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आश्रित नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज। मेरे को इनके नाम का कंफ्यूजन था पहले। इनका एक प्रबंध हमारे हार्मोनिस्ट ग्रंथ में प्रिंट हुआ था, आ हार्टफुल प्रेयर्स, इस नाम से। तो हमारी वैजयंती माला दीदी मेरे को फोन करके पूछा जे ये महाराज जी का ठीक ठीक नाम बता दो, तो मैंने बता दिया, श्री भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज। श्रवण मतलब श्रवण कीर्तन, ये वाला श्रवण कुमार, हम लोगों ने तो ये सुना हुआ था, तो इसलिए उनका नाम बहुत सालों तक मन में था, भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज। किंतु बाद में फिर किसी ने भूल निकाल दी कि ये तो श्रवण नहीं है, ये है श्रमण। श्रा के बाद में मां लगेगा और अणा भी नहीं है, ना है लास्ट में, श्रमण। ये सन्यासियों का नाम होता है 108 नाम में। तो उनका नाम है पूरा श्रीमद भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज। आज उनके शुभ आविर्भाव तिथि है। जो मायापुर में चैतन्य मठ है, प्रभुपाद जी का स्थान, जहाँ सबसे पहले प्रभुपाद जी रहते थे, जिसको बोलते श्री चैतन्य मठ। अभी उसको बोलते हैं आकर मठ राज भी बोलते हैं। आकर मतलब सबसे पहला, मूल, जहां से सारा कुछ प्रारंभ हुआ। आकर मठ राज, मठ में भी फिर राज लगा दिया साथ में, आकर मठ राज। उस स्थान पर ये महाराज जी जो हैं, ये आचार्य का कार्य किया इन्होंने। शिला प्रभुपाद जी के जाने के बाद पहले शिला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, फिर दूसरे उनके बाद में आचार्य के पद पर शिला भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी वहां पर विराजमान हुए। इन्होंने शिला प्रभुपाद जी के समय से लेकर के अपने अंतिम समय तक बहुत सारी सेवाएं प्रदान की। जब ये अभी अपने घर में ही रहते थे, तब इन्होंने एक श्लोक अपनी माता जी के मुख से सुना था, जिसमें कहा गया कि वो माता धन्य है जिसके गर्भ से वैष्णव संतान जन्म लेती है। जननी कृतार्था। जिस स्थान पर ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव बनता है, उसका जन्म जिस स्थान पर होता है, वो पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। माता भी कृतार्थ हो जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति के जो पूर्वज होते हैं, वो कहीं पर भी क्यों ना पहुंचे हुए हों,
किस लोक में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, वो भी बड़े आनंदित हो उठते हैं कि हमारे कुल में एक वैष्णव ने जन्म लिया है। इस श्लोक को इन्होंने अपनी माता जी के मुख से सुना था, तो इन्होंने साथ साथ में बोला अपनी माता जी को, माता जी आप तो फिर मेरे को आशीर्वाद करो, मैं ऐसे वाला वैष्णव बनूं जिससे कि आप कृतार्थ हो जाओ, पृथ्वी धन्य हो जाए, और हमारे जो पूर्वज हैं सारे वो भी अपना आनंदित होकर नृत्य करें, मैं ऐसी वाली अच्छी वाली संतान क्यों नहीं बनूं, आप आशीर्वाद करो मैं ऐसी वाली संतान बन जाऊं। तो माता ने उनको आशीर्वाद किया और बाद में फिर इनका शिला प्रभुपाद जी का चरण आश्रय किया, श्रीधाम मायापुर में आ गए और बड़े अच्छे वैष्णव हुए, बहुत ही अच्छे वैष्णव बने। शिला प्रभुपाद जी के समय में बहुत सारे ग्रंथ छपते थे, बहुत सारी पत्रिकाएं छपती थी। हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के साथ में ये शिला भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी, इनको प्रभुपाद जी ने इनको गुरु महाराज जी के साथ में सेवा करने में लगा दिया। गुरु महाराज जी 1923 में आए थे, फुल टाइम ज्वाइन किया था गौड़िया मठ को, और इन्होंने फुल टाइम ज्वाइन किया था 1928 अथवा 1929 में, गुरु महाराज जी के 5-6 साल के बाद में। तो इसलिए गुरु महाराज जी के असिस्टेंट के रूप में पहले गुरु महाराज जी संपादक थे दैनिक नदिया प्रकाश के, तो इनको भी उनके साथ ही में उनके असिस्टेंट के रूप में प्रभुपाद जी ने सबसे पहले रखा था, शिला भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी को। इनको नाम मिला था ब्रह्मचारी वाला, श्री कृष्ण कांति ब्रह्मचारी। इस प्रकार से इन्होंने उस समय ग्रंथों की सेवा में अपना योगदान दिया था प्रभुपाद जी के कहने पर, और सेवाएं तो अलग अलग बहुत सारे, उसमें से ये एक मुख्य सेवा करते थे। उसके बाद में फिर प्रभुपाद जी के जाने के बाद में शिला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के भी इस जगत से जाने के बाद इनको आचार्य के पद पर बिठाया गया। किसी एक व्यक्ति ने इनके जीवन में बड़ी सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो प्रकटित तो हुई। एक व्यक्ति ने इनके प्रति क्रोध किया बहुत अधिक हो, कुछ इनसे चाहता था ये हामी भर दें, ये हामी नहीं भर रहे उस चीज के लिए। वो व्यक्ति क्रोधित तो होकर के इनसे लड़ाई करने के लिए गया, क्रोधित तो हुआ और गाली निकालने लगा, और फिर चप्पल अपनी उतार ली उस व्यक्ति ने, और इनको चप्पल दिखा करके कहता चप्पल तेरे मुंह पर मारूंगा, इस प्रकार से करने लगे। किंतु ये महाराज जी जो हैं वो उस समय सन्यासी भी हैं, आचार्य भी हैं। कोई व्यक्ति कुछ कहने के लिए दूसरे लोग जो है उसका विरोध करने के लिए आएंगे, ये सब कोई बोलते हैं जी नहीं नहीं कोई कुछ भी मत बोलना, जो बोलते हैं उनको बोलने दो, तुम लोग बीच में क्यों आते हो, तुम लोग बीच में मत आओ, मेरे से बात कर रहे हैं मेरे से बात करने दो। और उनको तब भी कुछ ही नहीं कहते। वो व्यक्ति जब सारा कुछ बोल चुका तो अभी शांत हुए कुछ, बस इतना कह करके ये अपना चले गए कक्ष में अपने, कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे वाले इनके जीवन में अलग अलग बहुत सारे प्रसंग, जैसे शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, उनके गुरु भाई उनका निंदा करें, विरोध करें, कुछ भी क्यों ना कहते रहें, किंतु तब भी उन्होंने क्या करना, सब समय कहते थे कि मेरे प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, मेरे लिए क्या सोचते हैं, उसका क्या चिंता करना इतना। किंतु इनका प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा है
हरि नाम के प्रति, महाप्रभु के प्रति, राधा कृष्ण को आराध्य मानते हैं, इसलिए ये मेरे पूजनीय है, मैंने इनकी पूजा करनी। इसी प्रकार से शिला भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी ये उसी प्रकार से कहते थे कि मेरे प्रति क्रोध करते हैं, किंतु हैं कौन? वैष्णव। शास्त्र में ऐसे वाला एक श्लोक लिखा है, ये महाराज जी बोलते थे उस श्लोक को, जिसमें कहा गया कि कोई भी भक्त अगर क्रोधित होए, उसके स्वभाव के कारण उल्टा पलटा कुछ बोले, जैसा भी कुछ क्यों ना करे, किंतु अगर तब भी कोई व्यक्ति उनको क्या देखता है कि ये तो है, तो ये वैष्णव हरि नाम करते हैं, गुरु के प्रति निष्ठा युक्त हैं, स्वभाव के कारण मेरे प्रति अगर क्रोधित भी हुए हैं तो क्या हुआ, वो उस चीज को देखते नहीं है और क्या करते हैं, तब भी इनको वैष्णव मान करके उनके प्रति सचमुच में हृदय से ही श्रद्धा रखते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे वाले जो मेरे भक्त होते हैं, मैं उनके प्रति बड़ा प्रसन्न होता हूं। इसलिए इनके लिए 3-4 श्लोक भक्त लोग विशेष करके इनकी महिमा बोलते थे। क्या श्लोक हैं वो? कुछ भगवद गीता में भी भगवान ने लिखे हुए, बोले हुए इसी प्रकार के, कि मेरे भक्त होते कैसे हैं और मेरे वही वाले भक्त कैसे मेरे को प्रिय भी होते हैं। जो पहले वाला श्लोक मैंने बोला, जो इन्होंने अपनी माता जी से सुना था, वो क्या कहता है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरो अपि तेषाम ये शाम कुले वैष्णवो नाम धेया। कह रहे जिस कुल में किसी वैष्णव का जन्म होता है, वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, कृष्ण के, राम के अनन्य भक्त जो होते हैं, उनको कहते हैं वैष्णव। जिस कुल में वैष्णव जन्म ग्रहण करते हैं, वहां क्या होता है? कुलम पवित्रम, पूरा कुल पवित्र हो जाता है, ऊपर से नीचे तक। अभी तो लोग कुल की बात जानते भी नहीं, अधिक हम लोग बात भी नहीं करते। अधिक से अधिक नाम भी कितने लोगों का पता होता है? मेरे को अपने पिताजी का नाम पता है और फिर पितामह का नाम पता है, बस। इसके आगे कौन है कौन नहीं है नाम तक भी नहीं पता, नाम तक भी नहीं पता। किसका नाम पता है? केवल पिताजी का और पितामह, मतलब पिताजी के पिताजी, केवल ये 2 नाम पता है। फिर माताजी का नाम पता है मेरे को, और मेरे को अपनी दादी का नाम पता है। मेरी नानी का नाम क्या था मेरे को अभी सच में नहीं पता, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने शायद सुना ही नहीं या फिर मेरे को स्मरण भी नहीं है, मेरे को तो पता नहीं है मेरी नानी का नाम क्या था। नाना जी का नाम क्या है वो भी नहीं पता। मामा का फिर भी स्मरण है, किंतु नाना नानी का नाम तक भी नहीं पता। तो कुल को हम लोग बात करते हैं, जानते हैं नहीं। किंतु अभी श्री रसिकानंद प्रभु की हमने बात की है, किस लिए? उन्होंने, उनकी क्या महिमा थी, क्या शिक्षा दे करके गए वो हम सुन रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे गुरु वर्ग कृपा करके इन सारी चीजों को संजीवित रखते हैं कि देखो तुम, हमारे जो गुरु जी हैं उनकी क्या क्या महिमा है, हमारे परम गुरुदेव की क्या महिमा है, हमारे परात्पर गुरुदेव की क्या महिमा है, फिर हमारे परमेष्टि गुरुदेव की क्या महिमा है। ये सारी बात हम लोगों को एक एक करके सुनाते जाते हैं। रूप गोस्वामी जी की, सनातन गोस्वामी जी की, चैतन्य महाप्रभु की, माधवेंद्र पुरी पाद जी की, उससे पहले फिर श्री लक्ष्मीपति तीर्थ जी की, उससे पहले मध्वाचार्य जी की, उससे पहले व्यास देव जी की। ये सारे एक के बाद एक क्या करते हैं? महिमा सुनाते हैं। तो कुल को जो व्यक्ति जानता है, अब हमारा वास्तविक कुल सच में तो अभी यही वाला ही है, तो ये गुरु वर्गों ने कृपा करके बतला दिया। इसलिए कुल के विचारों को जो व्यक्ति श्रवण करता रहता है, उसका फिर अपना जो चरित्र है वो भी बड़ा विशेष गठित होता है। इसलिए अंग्रेज लोगों ने, मुगलों ने हम लोगों के प्रति ईर्ष्या करके जानबूझ के क्या किया, हमारे जो ये बड़े पूर्वज थे, बड़े विशेष जिनका महात्म्य है, ये हम लोगों को सबको उन्होंने क्या किया, इस चीज से काट दिया, अलग कर दिया।
उन्होंने यही बार बार कि पुराने लोगों का क्या बात करना, वो बेकार था, अभी ये नए लोग ये वाले अच्छे हैं, ये वाले अच्छे, उस तरह से करते करते यहाँ से ये सारा कुछ लोगों को भुला दिया कि पुराने लोगों को स्मरण भी मत करो। नहीं तो पुराने लोगों को, जैसे भगवान रामचंद्र का जब विवाह हुआ तो इनके कुल में कौन कौन आया है वो सारा बताते। सीता जी का पिताजी जनक महाराज जी का कुल, उस कुल में कौन कौन पूर्वज हुए हैं, क्या क्या उनका महात्म्य है, क्या शिक्षा देके गए हैं, इस सब का विचार करते थे, तभी विवाह करते थे कि इनका जो शिक्षा है वो कैसे वाला आया होगा, इनमें इनके जो रग रग में जो चीजें भीतर में भी आई हैं, शरीर जो आया है उसमें जो रक्त आया है, उस सब में भी कैसे प्रभाव आता है सारी वस्तु का, वो सारा बताते थे। तो इसलिए बोलते हैं कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है अगर एक व्यक्ति क्या करने लगता है, वैष्णव धर्म पालन करता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, माता कृतार्थ हो जाती है। कृतार्थ होना मतलब धन्य होना, धन्य हो जाती है कि ओ इसका ऐसा बालक, इसका तो भाग्य खुल गया, इसने अपने बच्चे को बड़ी अच्छी शिक्षा दी और उसने इतना आगे बढ़ करके उसने भी क्या किया, विष्णु भक्ति को ग्रहण किया, भगवान के चरणों तक पहुंच गया, इतना उन्नति किया उसने। इसलिए माता भी क्या हो जाती है, कृतार्थ, जननी कृतार्थ। वसुंधरा सा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, वसुंधराचा वसतिश्च धन्या, पृथ्वी धन्य हो जाती है, जिस गांव में उसका जन्म होता है वो धन्य अपने आप हो जाता है, पृथ्वी वहां की विशेष रूप में। नित्यंति स्वर्गे पितरो अपि तेषाम, ऐसे व्यक्ति का कि जो पितर लोग होते हैं, पूर्वज, वो सारे क्या करते हैं, स्वर्ग में हो, जहां पर हो, आनंद से नृत्य करने लगते हैं। ये शाम कुले वैष्णवो नाम धेया, जिनके कुल में कौन आ गया, वैष्णव, अच्छा वाला शुद्ध वैष्णव, सचमुच में भगवान के चरण कमलों का दास हो। इस प्रकार से इन्होंने ये श्लोक सबसे पहले अपने माता जी से सुना था, तब इन्होंने कहा था आप आशीर्वाद कर दो, मैं फिर ऐसे वाला ही वैष्णव बन जाऊं, पवित्र वाला, शुद्ध वाला। उसके बाद में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति ने इनको क्या किया, इनका अपमान किया। अपनी इसमें लिखा जैसे पादुका प्रदर्शन करता, इनको अपनी चप्पल उठा करके उसने हाथ में पकड़ ली और इनको दिखाने लगा, जो चप्पल से पिटाई लगा दूंगा तेरी। ऐसे जब किया, अपमान किया, तब भी इन्होंने क्या किया, ताते हो तीन धैर्य सीमा हाराई लेना, इन्होंने अपना धैर्य जो है वो खोया नहीं, क्रोधित हुए नहीं, मुख से भी कुछ बोला नहीं। किस लिए, इन्होंने जिस प्रकार से किया जो सारा, उनको तब भी सम्मान भी किया और फिर उनसे थोड़ा सा अपने स्थान पर चले गए, अलग हट गए। उसी के लिए श्लोक बताया भगवद गीता का 12 अध्याय। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं कुल मिला के, 18 अध्याय हैं। 12वें अध्याय में जो भगवान ने बातें बोली हैं, हमारे गुरु महाराज जी जब हमारी दीक्षा हुई, मेरी सिद्धांति महाराज जी की, हरि नाम हुआ, दीक्षा तो बाद में कुछ दिन बाद, जब हरि नाम हुआ तब गुरु महाराज जी ने उसी समय कहा भगवद गीता का जो ये 12वां अध्याय, इसको हर रोज पढ़ के अच्छी तरह से अर्थ के साथ में भगवद गीता का 12वां अध्याय पढ़ के प्रतिदिन अच्छी तरह से प्रयास करना। जो इसमें 20 श्लोक हैं, ये सारे कंठस्थ हो जाए, मतलब स्मरण हो जाए सारे श्लोक, 20 श्लोक। इस प्रकार से उन्होंने उस समय आदेश किया था। तो हमारे एक गुरु भाई वृंदावन में रहता था, भागवत महाराज, वो बोलते हैं मेरे को पता है गुरु महाराज जी ने क्यों बोला ये वाले अध्याय को आप लोग रोज पढ़ना, मेरे को पता है ये वाले अध्याय हर रोज क्यों पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो मैंने पूछ लिया एक दिन कि आप तो बार बार बोलते हो, तो आप बता भी दो कि गुरु महाराज जी ने क्यों बोला ये वाला अध्याय ऐसे
पढ़ने के लिए प्रत्येक दिन। वो कहते हैं कि उनको पता है कि मैं वृंदावन में रहता हूं, तुम लोग भी यहीं रहोगे, तो मैं बार बार मेरा मेरे लिए बोलते हैं, क्योंकि इस अध्याय में बताया भगवान ने कि कैसे सहनशील बनना चाहिए, मेरे भक्त में क्या क्या गुण होते हैं। कोई मान करे, अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, तब भी भक्त कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं, उनको इससे कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए गुरु महाराज जी ने बोला, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। क्योंकि वो क्या करते हैं, भागवत महाराज, वो बहुत सारे लोगों का अपमान करते हैं, मान तो नहीं करते, अपमान करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं बहुत अधिक, बोधायन महाराज जी की विशेष करके। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए गुरु महाराज जी ने तुम लोगों को ये वाला कहा है कि ये वाला अध्याय पढ़ो। तो जैसा भी हो, वो तो ये बोलते थे। तो ये इसी अध्याय में 3 श्लोक लिखे। क्या लिखा है, एक श्लोक में है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानव द्विजते चया हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो या सा चा मे प्रिया समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्ये निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेता स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से इस अध्याय में ऐसे वाले अच्छे अच्छे श्लोक बता रहे हैं कि मेरा भक्त, क्योंकि वो मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है। मेरी सेवा करने से क्या होता है, मेरे वाले जो गुण हैं, सेवा मतलब मेरी सेवा करेगा मतलब मेरा संग करता है, मेरे निकट में आता है, मेरे बात सुनता है, मेरे अनुसार चलता है, उसके मन में मैं घूमता हूं। तो ये सारी चीज मेरा भक्त होने का अर्थ यही वाला है। मेरे उठते बैठते मेरे को स्मरण करता है, मेरी महिमा गाता है। तो मेरा जो ऐसा भक्त होता है, सेवा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो कैसा वाला हो जाता है, धीरे धीरे बिल्कुल मेरे जैसा हो जाता है। मेरे वाले गुण उसमें आ जाते सारे। जिसकी सेवा जो व्यक्ति करेगा उसके गुण उसमें आएंगे। इसी बात को इस अध्याय में बताया कि मेरे गुण उसमें आते हैं। क्या गुण है उसमें, वो कह रहे हैं कि समा शत्रौ च मित्रे च। मैं जैसे मैंने सब जो है अपनी संतान की सृष्टि मैंने की। अब उन संतानों में से कुछ संतानें जो हैं वो मेरे से क्या करती हैं, मेरे से मित्रता रखती हैं। कुछ संतान ऐसे वाला काम करती है जैसे उनको मैं अपना शत्रु कहूं, शत्रु वाला काम करते हैं। किंतु मेरी संतान मेरे लिए मित्र वाला काम करे, मेरे लिए मेरी संतान मेरे शत्रु वाला काम करे, किंतु मैं तब भी कैसा रहता हूं, उन दोनों के प्रति सब समय मंगल कामना करने वाला, उनका शुभ चिंतक बन के ही मैं रहता हूं। मेरे मन में उनका अमंगल करने की कदापि कभी कोई वृत्ति नहीं आती। क्यों? मैं तो उनका पिता हूं, मेरे में कैसे आई ऐसी कोई वृत्ति। इसी प्रकार मेरा भक्त भी जो होता है वो सबको ही क्या देख पाता है कि ये सारे के सारे भगवान के ही तो अंश हैं, ये तो मेरे अपने हैं, इनमें क्या शत्रु और क्या मेरा मित्र। इसलिए वो जो शत्रु का कार्य उसके प्रति करने वाला व्यक्ति, उसके प्रति भी इसका कभी मन में नहीं आता कि ये मेरा शत्रु है। जैसे युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु बोला। दुर्योधन जितनी शत्रुता कर लेता है, मारने के लिए प्रयास करता है, अहित करता है, ये तब भी कभी भी नहीं, मुख से बोलना तो अलग बात, मन में भी कभी नहीं सोचते कि ये मेरा शत्रु है। ये मेरा शत्रु थोड़ा ना है। ये ऐसा काम क्यों कर रहा है? मेरे अपने किसी दोष के कारण, मैं उसका कारण हूं। तो इसीलिए समा शत्रु च मित्रे च। मेरा भक्त कैसा होता है?
मित्र और शत्रु के प्रति एक समान होता है। तथा मान अपमानयो, उनका कोई सम्मान करे, उनका कोई अपमान करे, उसमें भी वो अपने अंदर हृदय से कभी भी वो किसी ने सम्मान किया बहुत अधिक, ये फूल करके कुप्पा बन जाएंगे, ऐसे वाले होते नहीं। और कोई इनका अपमान करे, ये एकदम से मरे हुए व्यक्ति की तरह हो जाएंगे, कुमला जाएंगे, दुखी होएंगे, किसी के अमंगल की बात करेंगे, सामने नहीं बोल पा रहा हूं, अंदर अंदर में इसके लिए बोलूंगा गालियां, मैं तो इसका विरोध सामने इसका मैं टिक नहीं सकता, बाहर अंदर अंदर से इसको क्या करूंगा, ऐसा छल करूंगा, इसको कुछ सिखलाऊंगा सबक, ऐसा कुछ भी अपने मन में नहीं सोचते, मन में भी नहीं आता इनके। क्रिया में बाहर में आने की तो बात ही क्या, शब्दों में भी नहीं आता। अगर किसी कारणवश कुछ शब्द से बोलते भी हैं, मन में किंतु कुछ नहीं होता। इस प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, भगवान कह रहे हैं। और समा संग विवर्जिता, ये दुष्ट संग कभी भी ये करते ही नहीं है। दुष्ट संग इनके निकट आकर के भी इनको स्पर्श नहीं कर पाता, उसके पूरी तरह से उसके भीतर में होने पर भी ये उससे पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं, मेरे ऐसे वाले भक्त होते हैं। और हर्ष अमर्ष भयो उद्वेगैर मुक्तो, उद्वेग से मुक्त होते हैं। किसी ने संसार की बहुत बड़ी चीजें इनको ला करके दे दी, बड़ा प्रसन्नता का विषय था ये, किंतु जागतिक किसी भी वस्तु को प्राप्त करके कभी भी हृदय में थोड़ा सा भी हर्ष अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तु है, उसके द्वारा क्या आनंदित होना, कभी नहीं आनंदित होते संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करके, जितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना मिल जाए। और हर्ष अमर्ष, उसका उल्टा अगर हो जाए, कुछ भी ना मिले, जो था वो भी सारा लुट जाए, तब भी क्या होता है इनको, ये इनको कुछ होता ही नहीं, जैसे पत्थर हो। वास्तविक रूप में पत्थर नहीं है, हैं बड़े प्राणवान, किंतु जगत की सारी वस्तु उनके लिए कैसी है, मिलने पर भी उसमें हर्ष का कोई बात नहीं, उसके चले जाने पर भी उसमें कोई दुख का बात ही नहीं है। इसीलिए ये कैसे रहते हैं, उद्वेग से पूरी तरह से मुक्त, इनको कोई उद्वेग नहीं दे सकता। उद्वेग का दो तरह का अर्थ होता है। उद्वेग का वेग मतलब ऊपर की तरफ भी जा सकता, नीचे की तरफ भी जा सकता। ये बड़ा उत्साहित हुआ है, ये भी वेग है। ये बड़ा निरुत्साहित हो रखा है, मरा मरा सा, ये भी वेग है। तो कहते हैं इनमें अपना, ये अपने भक्ति करने में, भगवान की तरफ जाने में, अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त हैं, जैसे समुद्र, जितना जल निकाल लो वो वेग रहित, जितना अधिक उसमें जल डाल दो तब भी वेग रहित हो। तो भगवान कह रहे मेरे भक्त ऐसे वाले होते हैं, ऐसा उनमें धैर्य होता है, उद्वेग मुक्त होते हैं। इसलिए मेरे को वो अधिक से अधिक प्रिय, जितना मेरे भक्त बनते जाते हैं उनमें उतना मेरे वाले गुण आते हैं, जितना उनमें गुण आते जाते हैं मेरे को उतना वो प्रिय लगते हैं। मेरे को अपने मेरे ये वाले भक्त बड़े प्रिय हैं। तुल्य निंदा स्तुति रुमौनी, तुल्य एक समान, किसमें? निंदा स्तुति, निंदा में हो स्तुति में हो एक समान रहते। जिसने निंदा किया वो भी वही बात है, जिसने स्तुति की वो भी वही बात है। शिला संत गोस्वामी महाराज जी की बात सुनी हुई ना, स्टीमर में गए, छोटे से बालक हैं और आसपास के लोग बोल रहे हैं छोटा सा बच्चा खिड़की के पास क्यों बैठा है, इतना छोटी उम्र में भगवान का भजन करने क्यों आ गया, माता पिता ने रखा नहीं तेरे को घर में, ऐसे उन्होंने जन्म दे दिया फालतू में, तेरे को किसी ने अक्ल नहीं सिखाई। बड़ा कोई व्यक्ति आए उससे पूछना चाहिए वो कहाँ बैठना चाहता है, बड़ी सारी बातें उनको सुनाते हैं। वो बेचारे खड़े होकर के खड़े हो गए स्टीमर में, दूसरे लोगों को ही सीट दे दी, बोलते जा रहे इधर हो जा और इधर हो, इधर हो, क्या कर रहा है, आगे हो जा, खड़ा ही कर दिया। और बाद में स्टीमर डूबने वाला है, अनाउंसमेंट हुई सारे मर सकते हैं। फिर वही लोग क्या बोल रहे हैं, ये छोटा बच्चा बहुत अच्छा है,
इसने भगवान का भजन किया बचपन से, इसकी भगवान अवश्य ही सुनेंगे। बच्चा हमारी गोदी में बैठ जा, भगवान को पुकार, हमारा स्टीमर डूबे ना तो भगवान को पुकार, तब स्तुति कर रहे हैं। तो इसलिए श्रील संत गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, उन्होंने स्तुति किया वो भी अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने निंदा किया वो भी अपने स्वार्थ के लिए। जगत का व्यक्ति क्या करेगा? स्तुति भी करता है स्वार्थ के लिए, निंदा भी करता है स्वार्थ के लिए। इसलिए इनकी स्तुति और इनका जो निंदा दोनों ही एक समान, उसमें मूर्ख व्यक्ति ध्यान देता है। इनकी स्तुति और इनके सम्मान का क्या लाभ? इसी प्रकार से भगवान इसी बात को बोल रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुति रुमौनी। मेरा भक्त जो है वो एक समान होता है, किसमें? निंदा में भी स्तुति में भी। संतुष्ट जैन केनचित, वो मौन रहता है, उसको वो अधिक वाचाल होता नहीं, वास्तविक रूप में वो संसार की कोई बात करता ही नहीं। संसार वाले दृष्टिकोण से ना कुछ देखता है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ सुनता है, उसका स्थिति अलग है। और संतुष्ट येन केनचित, जिस भी अवस्था में उसको भगवान रख देते हैं, मान करवा करके, अपमान करवा के, बहुत कुछ दे के, बिल्कुल कुछ नहीं दे करके, कुछ भी करके, उसी में क्या है? परम संतुष्ट। सब समय क्या बोलता है? केवल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिकेता, इस संसार में किसी भी स्थान को, एक छोटे से स्थान को भी ये नहीं कहता कि ये मेरा है ही नहीं मेरा। अनिकेत, भगवान के चरण कमल ही मेरा घर है, और कोई स्थान मेरा नहीं है। अनिकेत। स्थिर मति, और मति उनकी कैसी रहती है? एकदम स्थिर। इस प्रकार के जो होते हैं, भक्तिमान में प्रियो नरा, ये मेरे को बड़े प्रिय होते हैं, ये भक्तिमान है। तो इसलिए शिला भक्ति कुमुद, भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी के लिए ऐसे वाले सारे श्लोक जो हैं, ये बड़े उनके जैसे सारे भक्त लोग बोलते थे कि ये इस प्रकार के ये सारे श्लोक इनके चरित्र में बड़ी अच्छी तरह से दिखलाई पड़ते हैं। ये उस प्रकार के रहते थे और बड़े संतुष्ट रहने वाले। बहुत सारे लोग इनकी जीवा पर सब समय जो साथ में रहते थे, जिनका सौभाग्य हुआ, वो लोग सब समय ये देख पाते थे कि इनके मुख के ऊपर सब समय क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करते हैं और श्लोक बोलते हैं और ग्रंथ पढ़ते हैं और भक्तों को कथा सुनाते हैं। उसी तरह से अपना करते करते सारा जीवन व्यतीत कर दिया। और किसी के साथ में कोई संसार की बात, कोई कुछ पूछने भी आता, गलती से कोई प्रसंग संसार का उठा देता, तो ये हाथ जोड़ करके बोलते, ये हम तो उस बारे में कुछ भी तो नहीं जानते, हरे कृष्णा इतना कह करके ही बात संपूर्ण कर देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दोनों वैष्णवाचार्यों की आज शुभ अन्नकूट के दिन में इनकी आविर्भाव तिथि, इनके श्री चरण कमलों में हम लोगों का प्रणाम। या धीरू भाई प्रसाद।